ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। Thank you so much, ma'am, to introduce me and giving me this opportunity. I am very thankful to Deepa, ma'am, who gave my name. And good evening to all of you. I am Dr. Sikha, Assistant Professor, Department of Prasuti Tantra, IMSBHU. And my topic is today Ayurvedic approach to uterine leiomyoma, a holistic perspective. Its introduction that estrogen and progesterone are pivotal hormone. हम इसमें पहले एक थ्योरी है मॉडर्न की, उसके बाद आयुर्वेदिक थ्योरी क्या कहती है, उसका क्लिनिकल केसेस एंड उसके बाद इन सिलिको स्टडी होल प्रोस्पेक्टिव है इसमें. नाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइब्रॉइड. Estrogen and progesterone are pivotal hormone in the female reproductive system, and these playing critical role in menstrual cycle regulation, pregnancy, and overall women's health. Imbalance and dysregulation of these hormones can lead to various health issues, including menstrual irregularities, infertility, and conditions like breast cancer, fibroid, and endometriosis. Traditional medicine systems across the world have long used herbal remedies to address these concerns, but the exact mechanism of action have often remained undefinable. Now, the introduction of leiomyoma. Uterine leiomyoma is a common benign solid pelvic tumor in women. It is also known as uterine fibroid or leiomyoma. It occurs in approximately 20 to 40% of women during reproductive age. This is figure of uterine fibroid or leiomyoma. It frequently leads to heavy menstrual bleeding, pelvic pain, subfertility, and pregnancy-related complications that lead to reduction in the quality of life. So there is a need of non-surgical method to cure of uterine fibroid. Now its origin. The complete etiology of uterine myoma is not completely known, but it develops from mutation in single uterine smooth muscle cell. It has been demonstrated that 70% cases of uterine fibroid mutation in the exon 2 of MED12 gene of X chromosome was found. इसका मतलब है इसका एक जेनेटिक कोरिलेशन भी है कि ये जेनेटिक म्यूटेशन से भी हो सकता है. One of the most pathological feature of uterine myoma is excessive deposition of extracellular matrix composed of mainly collagen. Type 1 and type 3, it is assumed that excessive deposition of collagen-rich ECM or extracellular matrix is responsible for symptoms like abnormal menstrual bleeding, pelvic pain, and pelvic pressure. Now the classification according to site of origin. Corporeal, which occur in the body of uterus, these are 97%, and cervical, these occur only in 3%. According to location, these are submucosal, intramural and subserosal. जो इंट्राम्यूरल होते हैं ये मायोमेट्रियम में इनका ओरिजिन होता है. अगर ये इनसाइड द कैविटी एंडोमेट्रियल कैविटी की साइड ग्रो करते हैं तो ये सबम्यूकोजल है, और ये अगर पेरिटोनियल कैविटी की साइड ग्रो करते हैं तो ये subserosal. Now the FIGO classification. FIGO is International Federation of Gynecology and Obstetrics. They give classification of fibroid in various ways. The type 0. Type 0 is pedunculated in the cavity. These are एंडोमेट्रियल कैविटी में जो पेडंकुलेटेड होते हैं उनको टाइप 0 दिया है. उसके बाद जो लेस देन 50% इंट्राम्यूरल जो होते हैं ये टाइप 1 है. इसमें 50% लेस देन 50% इंट्राम्यूरल and greater than 50% it's submucosal. Type 2, इसमें greater than 50% it's intramural. Type 3, ये टाइप 3 है, इसमें 100% इंट्राम्यूरल होता है पर ये एंडोमेट्रियम से इसका कांटेक्ट रहता है. टाइप 4 इंट्राम्यूरल है टोटली और इसका एंडोमेट्रियम से कोई कांटेक्ट भी नहीं रहता है. टाइप 5
सब सिरोसल है और इसमें ग्रेटर देन 50% इंट्राम्यूरल है। टाइप 6 इसमें लेस देन 50% इंट्राम्यूरल है, ये भी सब सिरोसल ग्रेटर देन 50% है। टाइप 7 ये पूरा सब पेरिटोनियल कैविटी में रहता है, सब सिरोसल और ये पेडंकुलेटेड रहता है। उसके बाद टाइप 8 अगर इसके अलावा कोई और टाइप का है तो वो टाइप 8 में काउंट होता है। Current strategy for the management of uterine leiomyoma. Management of uterine leiomyoma depend on many factors, including the size, location of leiomyoma, existing symptoms, progress of myoma, patient age, patient's reproductive desire, as well as proximity to the upcoming menopause. अगर साइज छोटा है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई उसका सिम्टम नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो भी हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, सिर्फ उस पर नज़र रखेंगे, उसका यूएसजी बार बार कराते रहेंगे जिससे पता चले कि ग्रोथ तो ज़्यादा नहीं हो रही है। पेशेंट एज के हिसाब से और इन सब के हिसाब से उसका मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ यूटेराइन फाइब्रोइड इंक्लूडिंग सर्जिकल एंड फार्मास्यूटिकल एजेंट. Now the surgical management, there are various ways of surgical management. First, hysterectomy, the removal of uterus, whole uterus, for female who have achieved menopause or don't want more children. Myomectomy or removal of myoma is a great choice for female who want conception, but the recurrence rate of fibroid after myomectomy is about 30%. Laparoscopic myomectomy is also an alternative if the fibroid size is less than 8 cm. Myolysis is a various of laparoscopic myomectomy procedure in which the fibroid tissue is coagulated. Myolysis में जो laparoscopic मायोमेक्टमी होती है, इसमें सिर्फ मायोमा निकाला नहीं जाता है, उसको कोगुलेट कर दिया जाता है। ये लेजर से, क्रायोथेरेपी से, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एंडोमेट्रियल एब्लेशन प्रिवेंट अकरेंस ऑफ हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग. एंडोमेट्रियल अगर हम निकाल दें तो एंडोमेट्रियल एब्लेशन है, या उसको कॉटराइज कर दें, थर्मल एब्लेशन, केमिकल एब्लेशन, किसी भी तरह से, तो इससे ब्लीडिंग कम हो जाएगी. Now the uterine artery embolization was used in 1995 for the first time to manage uterine fibroid. By Ravina et al. It is performed by injecting polyvinyl alcohol particle through percutaneous femoral catheterization, which result in uterine artery occlusion. तो अगर ऐसा होगा तो थोड़ा साइज भी कम होगा और उसका ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी. Now the medical management. The drugs are used either as a short-term palliation or may be used in a rare case as an alternative to surgery. The objective of medical treatment include improvement of menorrhagia, minimizing the size and vascularity of the tumor in order to facilitate hysteroscopic and laparoscopic surgery, or where postponement of surgery is planned temporarily and also used as an alternative in perimenopausal women. These are the medicine which we can use. The first is progesterone, norethistone or medoxyprogesterone acetate. Its dose is 5 to 10 milligrams cyclically from day 5 to 20 days. इससे जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होता है और इसका इफेक्ट, इट इनहिबिट एंडोमेट्रियम ग्रोथ एंड रिड्यूस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. इसका साइड इफेक्ट नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ब्लॉटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड वेट गेन. Now the second drug is prostaglandin synthetase inhibitor. जैसे मैफनेमिक एसिड है, नेप्रोक्सेन है, आइबुप्रोफेन है, ये 500 मिलीग्राम TDS मैफनेमिक एसिड दिया जाता है. डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन लेवल, प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल डिक्रीज करता है ये, जिससे इसका इफेक्ट इन्फ्लेमेशन कम होता है और पेन कम होता है. बट ये मेनोरेजिया को और फाइब्रॉइड साइज पे कोई इसका इफेक्ट नहीं होता है. The third is antiprogesterone like mifepristone. It is given for 3 months a daily dose of 25 to 30 milligram. ये प्रोजेस्टेरॉन एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, जिससे फाइब्रॉइड साइज डिक्रीज हो जाता है. पर इसके जो साइड इफेक्ट है, एंजाइटी, एलर्जिक रिएक्शन, डायरिया, डिजीनेस, हेडेक, नोजिया, टायर्डनेस. Danazol, it is given in 200 to 400 milligram daily for 3 months. It increase androgen level, decrease gonadotropin,
and it reduces the fibroid size and create amenorrhea. Its side effects are acne, weight gain, decrease in breast size, flushing, sweating, vaginal dryness, and nervousness. Now, the fifth drug is GnRH agonists like goserelin, leuprolin, goserelin, and nafarelin. These are given in the form of implant, injection, or nasal spray. Prolonged activity of GnRH receptor and pituitary down regulation होता है इससे, and it decreased fibroid size by 30 to 35%. Hypoestrogenic state with reversible bone loss. इसका जो side effect है मेन and symptoms such as hot flushes, तो इसके साथ mild estrogen भी चलाया जाता है. GnRH antagonists cetrorelix and janirelix. 5 to 10 milligram of cetrorelix weekly दिया जाता है. It binds with GnRH receptor and its effect it decrease fibroid size by 30 to 45%. Rapid onset of amenorrhea होता है इससे. Now, seventh is norgestrol IUD, intrauterine device. T-shaped intrauterine device release 20 microgram per day, in which 52 milligram of 19-progesterone levonorgestrel is reserved. It releases progesterone in uterine cavity and it decreases menstrual bleeding. Contraindication इसके वही हैं जो IUD intrauterine device से associated हैं, like PID, uterine anomaly, immune suppressant, कोई stage है, cervical dyspepsia है या breast carcinoma है. आजकल जो ड्रग यूज हो रही है सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर लाइक यूलिप्रिस्टाल एसिटेट 5 to 10 मिलीग्राम पर डे 3 to 6 मंथ के लिए दी जाती है. ये डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन और जिससे एंडोमेट्रियल चेंज और एमिनोरिया होता है और इससे फाइब्रॉइड साइज भी 35 to 46% डिक्रीज होता है. इट इंक्रीज लियोमायोमा एपोप्टोसिस एंड डिक्रीज प्रोलिफरेशन. इससे एपोप्टोसिस साइकिल जो सेल की एपोप्टोसिस को बढ़ाता है और प्रोलिफरेशन डिक्रीज करता है, तो इसके कारण इसमें फाइब्रॉइड डिक्रीज होता है. इसका साइड इफेक्ट हेडेक, नोजिया, एब्डोमिनल पेन एंड डिस्मेनोरिया. दिस इज द फिगर. This show the drug which reduce the fibroid and their symptom and their mechanism of site of action. जो मैंने पहले बताया उसी का ये फिगर है. सिर्फ ये भी है जो ड्रग यूज होती है वो कैसे वर्क करती है यूट्रस पे. नाउ वी हैव डिस्कस द आयुर्वेदिक रिव्यू. In Ayurvedic text, there is no direct description of uterine fibroid. Uterine myoma or fibroid are overgrowth of tissue. In Ayurvedic text, overgrowth or tumor are described under apchi, galgand, granthi and arbud. आयुर्वेद में एक्चुअली कोई ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसको हम यूटेराइन लियोमायोमा से कंपेयर कर सके, पर ये एक ग्रोथ होती है यूट्रस में. तो हम इसको इन चार जो हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो ग्रोथ ओवर ग्रोथ के जो दिए हैं ये अपची, गलगंड, ग्रंथि और अर्बुद में ओवर ग्रोथ दी हुई है. तो हम इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं ये हम देखते हैं. अपची एंड यूटेराइन फाइब्रॉइड. अपची इज ए सर्कुलर स्मूथ ग्रोथ occur in mandible, axilla, posterior and anterior cervical region. These are associated with itching and mild pain and rupture after suppuration and disappear. तो हम इसको जो यूटेराइन फाइब्रॉइड के जो सिम्टम होते हैं वो सपुरेट नहीं होता है, उसमें इचिंग नहीं होती है और ये मैंडिबल रीजन, एक्जिला इन सब में नहीं होता है, तो हम इसको इससे नहीं कोरिलेट कर सकते हैं. गलगंड ग्रो ओनली इन द नेक रीजन, ये सिर्फ नेक रीजन में ही बताया हुआ है, तो हम इसको यूटेराइन फाइब्रॉइड से नहीं कंपेयर नहीं कर सकते. नाउ द अर्बुद एंड यूटेराइन फाइब्रॉइड. अर्बुद कैन अकर एनीवेयर इन द बॉडी, जो इसके संप्राप्ति में दिया हुआ है, ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ दोष एंड विटेशन ऑफ मांस धातु. इट इज सर्कुलर, हार्ड, डीप रूटेड ट्यूमर विथ माइल्ड पेन विच ग्रो वेरी स्लोली एंड इज नॉन सपुरेटेड. तो हम इसको जो इसके लक्षण हैं, जो इसकी संप्राप्ति है उसके अनुसार अगर हम माने तो हम इसको यूटेराइन फाइब्रॉइड से कंपेयर कर सकते हैं. इवन ग्रंथि इज सिमिलर टू अर्बुद. जो अर्बुद और ग्रंथि की संप्राप्ति जो उद्भव दिया हुआ है वो सेम ही दिया है पैथोजेनेसिस. तो हम मान सकते हैं कि ये ग्रंथि भी हो सकती है, पर यहाँ कुछ डिफरेंसेज है. जो
फाइब्रॉइड से डिफरेंट है। जैसे ग्रंथि सपुरेट आफ्टर सम टाइम बट फाइब्रॉइड इज सॉलिड ग्रोथ एंड नॉट सपुरेटिंग। एंड आचार्य चरक ने जो दिया है ग्रंथि का ट्रीटमेंट कि ये कैप्सूल के साथ ही रिमूव किया जाता है जिससे इसका प्रिविलेंस जो रिकरेंस ना हो इसका। और तो इसका मतलब है कि ग्रंथि क्या है, कैप्सुलेटेड है, पर फाइब्रॉइड जो होता है वो नॉन कैप्सुलेटेड होता है और इसमें या फिर इसमें स्यूडो कैप्सूल होता है। और सुश्रुत संहिता ने जो ग्रंथि की ट्रीटमेंट दी है वो आमावस्था पक्वावस्था में दी हुई है। तो फाइब्रॉइड में आमावस्था पक्वावस्था ऐसी कोई अवस्था नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये इससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। और ग्रंथि जो दी है साइज में स्मॉलर दी है और यूटेराइन फाइब्रॉइड का साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो हम कह सकते हैं कि हम यूटेराइन फाइब्रॉइड को ग्रंथि से कोरिलेट नहीं कर सकते और हम इसको अर्बुद से कंपेयर करना चाहिए। तो जो इसके लक्षण हैं, मायोमा के लक्षण जो कौन किस में प्रेजेंट है, तो अर्बुद में ये सारे लक्षण प्रेजेंट है। अराइज फ्रॉम मस्कुलर लेयर, सिचुएटेड इन यूट्रस, बिग इन साइज, नॉन सपुरेटेड, एसोसिएटेड विद लोअर एब्डोमिनल पेन, स्लोली ग्रोइंग, नॉन और स्यूडो कैप्सुलेटेड। तो हम इसको मान सकते हैं कि जो अर्बुद दिया है वो फाइब्रॉइड है, क्योंकि ये गर्भाशय में स्थित है तो इसे गर्भाशयगत अर्बुद मान सकते हैं। अब अगर हम इसको कंपेयर करें अर्बुद की पैथोजेनेसिस से यूटेराइन फाइब्रॉइड की, तो वात कफ और आहार विहार, वात पित्त एंड कफ दोषा आर एग्रीवेटेड बाय विच मांस दोष of गर्भाशय is vitiated and it produces a local swelling of मांस धातु called अर्बुद। तो इसमें दिया है जो आहार विहार दोष हैं वो एग्रीवेट होकर मांस धातु को दूषित करते हैं, जिससे एक लोकल स्वेलिंग होती है मांस धातु में, उसको अर्बुद कहते हैं। तो हम अगर इसको हम मॉडर्न उससे माने तो ओबेसिटी जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है, ओबेसिटी, लो पैरिटी, ये एस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज करेंगे जो स्टिमुलेट करेगा प्रोलिफरेशन को एंड ट्रांसफॉर्म और मायोमेट्रियल सेल को ट्रांसफॉर्म करेगा और इससे मोनोक्लोनल ट्यूमर यूट्रस में उत्पन्न होगा। सक्रिया काल को अगर हम इसको कंपेयर करें तो संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्तावस्था और भेदावस्था 6 अवस्थाएं हैं। तो अर्बुद और फाइब्रॉइड का इसमें कंपैरिजन है। अर्बुद में वात कफ प्रकोप आहार विहार मंदाग्नि एंड आर्म फॉर्मेशन होता है। इसमें लो पैरिटी जो इसके रीजन है संचय के, अर्ली मिनार्चे, ओबेसिटी एंड फैमिली हिस्ट्री, इससे दोष उत्पन्न होते हैं या संचय होते हैं। इसका प्रकोप अधोगति ऑफ डोज एंड अपान वायु आवरण बाय वात एंड आर्म, इसमें इंक्रीज एस्ट्रोजन एक्सपोजर एंड स्टिमुलेट प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल। प्रसर में म्यूटेशन ऑफ मांस एंड मेद धातु, म्यूटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मायोमेट्रियल स्टेम सेल्स। स्थान संश्रय, दोष लोकलाइज्ड इन आर्तव श्रोतस मेनली गर्भाशय, benign proliferation of monoclonal myometrial cell into mass, व्यक्तावस्था formation of अर्बुद in गर्भाशय and the formation of uterine fibroid. Now भेद, symptom like अत्यार्तव, वेदना, menorrhagia and lower abdominal pain and pressure symptoms. अब हम संप्राप्ति घटक को जो कंपेयर कर सकते हैं अर्बुद और यूटेराइन फाइब्रॉइड की, तो दोष है इसके वात कफ डोमिनेंट रिदोषज व्याधि है और इसमें एक्सेस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है। दूष्य इसका मांस है, मस्कुलर लेयर ऑफ यूट्रस और मायोमेट्रियम। मांस को हम मस्कुलर लेयर से कंपेयर करते हैं तो यूट्रस की जो होती है मायोमेट्रियम वो मांस से कंपेरिजन कर सकते हैं। अग्नि इसका धात्वाग्नि मंदता, मांस धात्वाग्नि मंदता होती है। इट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मायोमेट्रियल सेल, म्यूटेशन जो होता है मायोमेट्रियल सेल का, हम उससे इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। स्रोतस रस, रक्त, मांस एंड आर्तव स्रोतस, तो जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है। उद्भव स्थान गर्भाशय या यूट्रस, रोग मार्ग आभ्यंतर, इट इज डीप सीटेड ट्यूमर, सो वी कैन से दैट इज आभ्यंतर स्थित एंड साध्यता में ये याप्य है। कंपैरिजन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बुद एंड यूटेराइन फाइब्रॉइड। हम जो वातज है, वातज का मेन लक्षण है पेन। अकॉर्डिंग टू दोस इट इज डिवाइडेड इनटू 4 लाइक वातज, पित्तज, कफज एंड सन्निपातज। तो वात का जो मेन लक्षण है पेन,
तो जो सब सीरोसल होता है फाइब्रॉइड, जो पेरिटोनियल कैविटी में होता है, वो मेनली एब्डोमिनल पेन और उसमें प्रेशर सिम्टम होते हैं। तो हम इसको सब सीरोसल को वातज गर्भाशयगत अर्बुद मान सकते हैं। सब म्यूकोजल जो एंडोमेट्रियल कैविटी में ग्रो कर रहा है, उसमें हैवी ब्लीडिंग और ये सब सिम्टम होंगे। तो जिसको हम पित्तज का भी यही लक्षण है, दाह है और अत्यार्तव है, क्योंकि आर्तव भी पित्त उष्ण और पित्त प्रकृति का होता है, तो उसमें अति आर्तव हम मान सकते हैं। इंट्राम्यूरल जो मायोमेट्रियम में होता है, ये मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है। और कफज में भी पेन काफी कम होता है और उसमें ब्लीडिंग भी कम होती है। तो इंट्राम्यूरल को हम कफज से कोरिलेट कर सकते हैं। सन्निपातज में सारे लक्षण होंगे, पेन भी होगा, बहुत जल्दी ग्रो करेगा और इसमें हैवी ब्लीडिंग भी होगी। तो बहुत जो एक्सेसिव ग्रोथ या एकदम रैपिड ग्रोथ जिसकी होती है, वो मैलिग्नेंट चेंज अगर फाइब्रॉइड में है, तो हम उसके साथ इसको कोरिलेट कर सकते हैं। According to Dhatu, Acharya Shishu described in Nidan Star that out of 7 Dhatu, Ras, Rakta, Mans, Med, Asti, Majja, Sukra, mainly 3 types of Dhatu involved in Arbud, Med, Mans and Rakta. तो मेदोज अर्बुद, मांसज अर्बुद और रक्तज अर्बुद, ये 3 है। अब हम इसमें से किसको कोरिलेट करेंगे यूटेराइन फाइब्रॉइड से? तो मेदोज में जो होता है वो मेनली फैटी टिश्यू में होता है और ये लार्ज होता है, इची, पेनलेस होता है और ये बॉडी वेट के हिसाब से इसका साइज कम या ज़्यादा होता रहता है, जो इसके लक्षण दिए हैं शिशु संहिता में। पर फाइब्रॉइड का साइज बॉडी वेट के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है और ये इची, पेनलेस ऐसा नहीं होता है। तो हम इसको मेदोज अर्बुद से कंपेयर नहीं कर सकते, कोरिलेट नहीं कर सकते। जो मांसज अर्बुद होता है वो स्किन कलर का होता है, मोबाइल, स्टोनी हार्ट, पेनलेस, स्वेलिंग होती है ये। तो हम फाइब्रॉइड भी हार्ड, इमोबाइल, पेनलेस, मोस्टली पेनलेस, अगर ग्रो ज़्यादा हो रहा है तो उसमें अलग सिम्टम है। स्मूथ मसल सेल ऑफ मायोमेट्रियम होता है, तो हम इसको मांसज अर्बुद से कोरिलेट कर सकते हैं। और रक्तज अर्बुद जो होता है वो अनराइप पॉलिप लाइक अपीयरेंस विच इंक्रीज एंड स्प्रेड वेरी क्विकली। तो हम ये पॉलिप लाइक स्ट्रक्चर बताया है, तो हम इसको फाइब्रॉइड से कंपेयर नहीं कर सकते। तो मेनली हम जो कंपैरिजन है हमारा, तो यूटेराइन फाइब्रॉइड गर्भाशयगत मांसज अर्बुद है। कंपैरिजन ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऑफ अर्बुद एंड यूटेराइन फाइब्रॉइड। अर्बुद की जो चिकित्सा बताई है, भेषज, क्षार, अग्नि एंड शस्त्रकर। तो हम भेषज में यूटेराइन फाइब्रॉइड में अगर हम ट्रीट करते हैं तो इसकी मेडिसिन है प्रोजेस्टेरॉन, एंटीप्रोजेस्टेरॉन, जीएनआरएच एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सर्म। तो हम इसको भेषज से कोरिलेट करते हैं। अगर इसमें फिर भी रिलीफ नहीं मिलता है तो क्रायोमाइलाइसिस, हाई इंटेंसिटी ट्यूमर एब्लेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी, हम इसको क्षार और अग्निकर्म से कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन जो होता है वो हिस्टेक्टमी या मायोमेक्टमी, तो इसको शस्त्रकर्म से भी वहाँ कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हमने आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव है हमारा, ये गर्भाशयगत मांसज अर्बुद है, तो हम इसका आयुर्वेदिक मैनेजमेंट अर्बुद के हिसाब से कर सकते हैं। अब ये सारा जो रिव्यू है वो खत्म हो गया। अब क्लिनिकल केसेज के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इन करेंट मेडिकल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, यूलिप्रिस्टाल एसिटेट इज यूज्ड to decrease the size and symptomatic relief, but it has many side effects and fibroid again increased when medicine was stopped. So the herb mentioned in कफ अर्बुदर लेप, आचार्य सुश्रुत ने कफ अर्बुदर लेप बताया है अर्बुद की चिकित्सा में, तो उसका हमने ऑयल बनवाया जो हमने उत्तरवस्ती, क्योंकि हम लेप फाइब्रॉइड पे हम नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि वो इंटरनल है और ये सिर्फ लोकल यूज के लिए है, तो हमने इसका ऑयल बनवाया और इसको उत्तरवस्ती के रूप में दिया। तो उसकी हमने स्टडी की, तो मैं आपको आगे बता रही हूँ, और इसकी इन सिलिको स्टडी भी की है। नाउ पहले हम सिर्फ एक केस डिस्कस करेंगे जो मैंने पूरा दिया है डिटेल में, उसके बाद फिर केस सीरीज है जो मैंने शॉर्ट में बताई हुई है। This is a case study of a patient with uterine fibroid having heavy menstrual bleeding and lower abdominal pain.
Patient was 40 years of age, complaining of heavy bleeding during the menstrual cycle, which the passage of clots and generalized weakness since 8 months came into Prasuti Tantra OPD of PHU on 15 February 2022. Her marital life was 14 years and she has 2 children and last delivery was 6 years ago. Her menstrual cycle was 5 to 6 days and per 30 days and she is taking 5 to 6 pads per day. Her last menstrual period was 26 January 2022. She was diabetic since 6 years and on medication. Her father was diabetic and mother was hypertensive. इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग में जनरल एग्जामिनेशन, पेशेंट ब्लड प्रेशर 122/78, पल्स रेट 80, सिस्टमिक एग्जामिनेशन नॉर्मल था, कोई ऐसे चेंजेस नहीं थे. स्पेसिफिक एग्जामिनेशन स्पेकुलम और वेजाइनल एग्जामिनेशन किया तो पीवी करने पे इसका हार्ड रिट्रोवर्टेड यूट्रस और विथ स्लाइट टेंडरनेस मिला हमको. अब डायग्नोस्टिक असेसमेंट तो हमने उसके इन्वेस्टिगेशन कराए जिसमें अल्ट्रासोनोग्राफी और कंप्लीट ब्लड काउंट एंड थायराइड प्रोफाइल. पेशेंट वार्ड इन्वेस्टिगेट तो इसका जो यूएसजी होके आई वो 16 अप्रैल 2022 को आई जिसमें एक फाइब्रॉइड दिखा 3.33 सेंटीमीटर इंटू 3.33 सेंटीमीटर और इसका एचपी 9.4 था और सारी चीज़ें थायराइड नॉर्मल लिमिट में थी. तो उसके बाद हमने इसको ट्रीटमेंट दिया उत्तर बस्ती कफ अर्बुदर ऑयल से 4 to 5 ml per day for 7 days after cessation of menstrual cycle for 3 cycles. अब टाइमलाइन द फर्स्ट विजिट 15 फैब को थी, इन्वेस्टिगेशन 16 अप्रैल को हुए. फर्स्ट उत्तर बस्ती दिया हमने 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक 7 डेज के लिए. उसके बाद सेकंड उत्तर बस्ती 14 मई से 20 मई तक. थर्ड उत्तर बस्ती 20 जून से 26 जून तक. उसके बाद इसने अगस्त में यूएसजी फिर से कराया जिसमें फाइब्रॉइड साइज 1.1 to 1.2 सेंटीमीटर रह गया जो 50% से भी कम था. इसके बाद 6 मंथ बाद इसने फिर से यूएसजी कराई जो 11 मार्च 2023 को था जिसमें कोई भी फाइब्रॉइड शो नहीं कर रहा था. तो ये वही है जो अभी मैंने आपको बताया उत्तर बस्ती की टाइम और इसका वो. ये इसकी यूएसजी फाइंडिंग है. ये फर्स्ट यूएसजी जो अप्रैल में हुई थी ये आपको दिखा रहा है यूट्रस. ये साइज दिखा रहा है इसमें फाइब्रॉइड का. इसके बाद सेकंड यूएसजी में जो साइज दिखा रहा है फाइब्रॉइड का 1.1 to 1.2 सेंटीमीटर. नाउ द थर्ड यूएसजी में इसमें कोई भी फाइब्रॉइड नहीं है. तो हम कह सकते हैं कि इसका फाइब्रॉइड एटलीस्ट रिड्यूस तो हुआ और जब वो फॉलोअप के लिए आई 6 मंथ बाद तो उसका फाइब्रॉइड नहीं था. तो हमने इसी के ऊपर फिर और भी केसेज किए सेम ट्रीटमेंट लाइन से. तो ये एक केस सीरीज है 8 पेशेंट की. द फर्स्ट केस लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल 7 अगस्त 2021 में और उत्तर बस्ती इसकी 3 उत्तर बस्ती दी इनकी कंजुकेटिव साइकिल में. उसके बाद फिर इनके यूएसजी कराए 8 के. ये सारे इनके यूएसजी के स्कैन की वो है कब प्री ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट. तो ये इनका कंपैरिजन है जो चार फ्लो ग्राफ है. ये फर्स्ट केस में जो इसका रेड लाइन बिफोर ट्रीटमेंट जो फाइब्रॉइड है वो दिखा रही है और जो येलो लाइन है वो आफ्टर ट्रीटमेंट फाइब्रॉइड कितना रह गया वो दिखा रहा है. तो ये 100% से 58% रह गया फर्स्ट केस में. और इसमें 2 फाइब्रॉइड थे तो दूसरा फाइब्रॉइड नहीं था, सिर्फ एक ही फाइब्रॉइड रह गया इसका. सेकेंड केस में इसका 32% तक इसका फाइब्रॉइड रह गया 100% से. थर्ड केस में इसका 23% ग्रोथ रह गई सिर्फ. फोर्थ केस में 72.96% इसकी ग्रोथ रह गई. फिफ्थ केस में 41% ग्रोथ रह गई. और 6 केस में फाइब्रॉइड नहीं रहा, वो पूरा ही गायब हो गया, डिजॉल्व हो गया पूरा. एंड 7th केस में 83% एंड 8th केस में 32% ग्रोथ रही. तो इस केस सीरीज से हम देख सकते हैं कि फाइब्रॉइड सभी में कम हुआ है, एटलीस्ट कम तो हुआ है. सिर्फ 1 या 2 पेशेंट में पूरा डिजॉल्व हुआ है, नहीं तो औरों में कम हो गया है.
और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो था इंटरवल वो भी बढ़ा है, जिसका जल्दी जल्दी पीरियड आ रहे थे, जैसे फोर्थ केस में 20 डेज की साइकिल हो गई थी या उससे भी कम की, तो ये 28 डेज की हो गई, तो इनकी ब्लीडिंग भी कम हुई। ये ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जिनकी 6 डे 10 डे तक थी, वो सबकी डिक्रीज होके 2 या 4 डेज तक रह गई, 2 से 4 डेज तक। तो इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला हमें। उसके बाद जो पैड्स यूज करते थे, जैसे 4 to 5 पैड यूज करते थे फर्स्ट केस में, तो ये 2-3 पैड ऐसे रह गए। ये 11 पैड्स पर डे यूज करते थे सेकंड जो केस था इसमें, ये 3 पैड तक। तो ये सभी में आप देख सकते हैं कि ये सभी में ब्लीडिंग इंटरवल बढ़ा है, ड्यूरेशन कम हुआ है और ब्लीडिंग भी कम हुई है, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। ये हमने कंट्रोल ग्रुप है, ये हमने इसमें साथ में कंट्रोल ग्रुप भी लिया था। तो ये 12 केसेज हुए थे उस समय तक जो कंट्रोल ग्रुप के। इसमें हमने तिल तेल से उत्तरवस्ती दी थी, प्लेन तिल तेल से। वो हमने पूरा ऑयल बनाया था, मेडिकेटेड ऑयल था, कफरवुड हर लेप के जो इंग्रेडिएंट थे उससे लेके, और ये सिर्फ तिल तेल का ऑयल दिया था उत्तरवस्ती के लिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जितने भी केस हैं, किसी में सेम रहा है और किसी में थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है फाइब्रॉइड में। पर तो हम इससे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि खाली उत्तरवस्ती का इफेक्ट था, ये जो ऑयल बनाया था उसका भी इफेक्ट था, जो हमने ड्रग्स दी थी। हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट सोन इन दिस केस ऑफ सिम्टोमेटिक यूटेराइन फाइब्रॉइड, इट इज कंक्लूडेड दैट उत्तरवस्ती इज बेनिफिशियल टू डिक्रीज द साइज ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड व्हिच आर गिवन विद द हर्ब्स and to reduce menstrual bleeding related to uterine fibroid. Further study is needed in large size to data to assess the efficacy and adverse effect of management. तो ये क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट मैंने आपको बताया है। इसके बाद इन सिलिको स्टडी, हमने जो ड्रग की थी वो इन सिलिको स्टडी की थी। इसमें ये पता चलता है कि ये ड्रग कैसे वर्क करती है। हम कंप्यूटर से मॉडल बना सकते हैं जिससे जो किस रिसेप्टर पे काम कर रही है, किस तरह से काम कर रहा है जो ड्रग है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ। इन सिलिको स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर डॉकिंग इन ड्रग डिस्कवरी, recent advancement in computational biology, particularly in the field of molecular docking, have provided researchers with a powerful tool to explore the interaction between herbal compound and hormone receptor at atomic level. This approach allows for the deeper understanding to how specific compounds found in herbs can modulate estrogen and progesterone receptor, potentially providing insight into other therapeutic effects. मेथड हमने इसको कैसे किया, जो हमने हर्ब ली थी, जो उसमें हर्ब थी हिंसा, लांगली और ग्रंथिपर्णी, 3 हर्ब्स थी उसमें मेनली। तो हमने हर्ब कलेक्ट की एंड सेंट फॉर LCMS। LCMS में लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसमें ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल थे, पर इसमें बहुत हजारों में लाखों में जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो सभी आते हैं। फिर उसमें से हमने सर्च किया कि कौन सा मॉलिक्यूल एपोप्टोसिस प्रोसेस में इफेक्टिव है, वो हमने सेलेक्ट किए। उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर डॉकिंग परफॉर्म की एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पे, जिसके लिए हमने जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर को हम प्रोटीन मानते हैं, उसको हमने प्रोटीन डाटाबेस से डाउनलोड किया। और जो लाइगेंड जो हमारे हर्बल मॉलिक्यूल थे उनको लाइगेंड बोलते हैं इसमें, तो हमने वो पबकेम से डाउनलोड किए। उसके बाद इसमें पायरेक्स सॉफ्टवेयर और डिस्कवरी स्टूडियो 2 सॉफ्टवेयर यूज किए। उसके बाद रिजल्ट को एनालाइज किया। तो हिंसा के एक्सट्रैक्ट में फाइटोकेमिकल्स विच आर फाउंड इन हिंसा एक्सट्रैक्ट, तो ये जो मेन है का कंपाउंड थे वो मैंने लिखे हैं और सारे नहीं लिखे क्योंकि वो लाखों में आते हैं। Strazidine and hydrooctonic acid, 2-hydrooctonic acid, quercetin, ascorbic acid, myristic acid and caryophyllene oxide, ये 9 हमें हिंसरा में मिले। उसके बाद कॉल्चिसिन, सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, SN ग्लिसरो3 फॉस्फोकोलिन, और ग्रंथिपर्णी में क्वामेरिन, मास्टिक एसिड, कैरोफाइलिन ऑक्साइड, गैलिक एसिड, कैटेचिन, जैंटिसिक एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड, कॉमरिक एसिड एंड एलिकिक एसिड। ये इनकी पबकेम आईडी है। जब हम इनको पबकेम से डाउनलोड करते हैं तो इनकी एक अलग आईडी आती है, उसी से ये पूरा प्रोसेस होता है।
और यूपीए मतलब यूलिप्रिस्टाल एसीटेट का भी हमने देखा कि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पे कैसे काम करता है। इसकी पबकेम आईडी 30130904 है। उसके बाद हमने एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे जो रिजल्ट आया, ये इसमें बाइंडिंग एफिनिटी दिखाई है। तो जिसकी सबसे नेगेटिव बाइंडिंग एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है उस रिसेप्टर पे या जिस भी हम प्रोटीन पे वर्क कर रहे हैं। तो इसकी जो मोस्ट एफिनिटी है ये 5280343 से है, जो -9.4 है। उसके बाद -8.59064, जो तो एक तो क्वार्सिटीन है और 9064 कैटेचिन। उसके बाद ये 7.7 है, उसके बाद 7 है, देन 6.7। जो 6.7 है ये यूलिप्रिस्टाल एसीटेट की है। तो अगर हम इसको इंटरप्रेट करें, डॉकिंग इज ए मॉलिक्यूलर मॉडलिंग टेक्निक दैट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट हाउ अ प्रोटीन interact with a small molecule or ligand. Lowest binding affinity was found from 5 to 80343, which is -9.4. Lower value indicate better interaction with receptors, so that we can say quercetin molecule will work on estrogen receptor. और ये इसके 2D एंड 3D फिगर है जो हमने उसको लाइगेशन किया था उसका, कि ये कैसे वर्क करते हैं, कहाँ ज्वाइन होते हैं। ये जो रेड कलर का स्पाइरल दिख रहा है ये रिसेप्टर है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर। और ये जो दिख रहे हैं ये वाला बीच का, ये लाइगैंड है जिससे ये अटैच है। तो ये फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा अच्छा अटैच है ये क्वार्सिटीन का मॉलिक्यूल है। ये सेकंड नंबर का ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंड दैट इज लाइगैंड। इसमें ये लाइगैंड है और ये कहाँ कहाँ बाइंड है ये दिखा रहा है। ये थर्ड फिगर, ये थर्ड का, और ये लास्ट वाला यूलिप्रिस्टाल एसीटेट का है। नाउ हमने यही वर्क फिर प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पे किया। तो प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पे भी सबसे जो अच्छी एफिकेसी आई वो हमारी क्वार्सिटीन की ही आई है। और जो यूलिप्रिस्टाल एसीटेट की आई थी वो सिर्फ -7 आई थी, और सारे ये इन सबकी काफ़ी अच्छी आई थी। तो हमने लोएस्ट बाइंड, इसमें अगर हम इंटरप्रेट करें, लोएस्ट बाइंडिंग एफिनिटी वाज फाउंड फ्रॉम 5 to 80343, which is -9.3. The lower value indicate better interaction with receptor, so that we can say quercetin molecule will also work on progesterone receptor. ये फिर से इनका 3D फिगर है। इस समय ये प्रोजेस्टेरोन मॉलिक्यूल है, ये प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर के ऊपर ये मॉलिक्यूल है जो इस पे बाइंड हुआ है। ये 2D फिगर है और ये 3D फिगर है। ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो जो बेस्ट बाइंडर थे उन फिफ्थ 5 का है। तो अगर हम इसको डिस्कस करें, दिस रिजल्ट शोड दैट क्वार्सिटीन मॉलिक्यूल इज बेस्ट फॉर इंटरेक्ट विद एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर। दिस हर्बल मॉलिक्यूल विच इज फाउंड इन हिंसरा, तो क्वार्सिटीन जो था हिंसरा में मिल रहा था हमको, आर मोर पोटेंट देन यूलिप्रिस्टाल एसिटेट ऑन बोथ रिसेप्टर। और भी जो मॉलिक्यूल थे जैसे कैटेचिन था, और जो और भी हैं वो यूलिप्रिस्टाल एसिटेट से बेटर थे। 3-4 मॉलिक्यूल ऐसे मिले जो यूलिप्रिस्टाल एसिटेट से बेटर बाइंड हो रहे थे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पे। With these herbal compound, we can make a potent drug and act on hormone-related disorder, mainly uterine fibroid. Then we can conclude it is that molecular docking is a way to determine possible action of molecule in any protein and receptor without laboratory, so that we can further research on them can develop a medicine. We can determine that Granthipani, Hinsra and Langley act on estrogen and progesterone receptor. With these herbal compound, we can develop a medicine for uterine fibroid. Thank you. अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं। यस मैम। थैंक यू। यस मैम।
हाँ जी मैम। हेलो मैम। हाँ हाँ। मैम आपको इसमें जो केस स्टडी किया है उसमें हेतु क्या आज के काल के इस परिप्रेक्ष्य में क्या हेतु मिले वो पूछना था। मुझे समझ नहीं आया, मतलब आप हेतु क्या पूछना चाह रहे हैं पर। कि पेशेंट में कौन से हेतु मिले, कॉमन हेतु क्या मिले, ये जो आपने केस स्टडी किया है पेशेंट्स में। लक्षण उसके मतलब आपको क्या मिले, यही ना, मतलब लक्षण नहीं, मेनिस्ट्रल। हेतु हेतु हाँ, हेतु हेतु इनके रीजन का निदान रीजन। निदान। हाँ। रीजन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई ऐसा रीजन नहीं है एक्चुअली यूटेराइन फाइब्रॉइड का। ऐसा नहीं है कि पेशेंट मतलब वो कोई उसके बेबी नहीं थे या बहुत सारे बच्चे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो हम ऐसे इसको कंपेयर नहीं कर सकते कि कोई सेम रीजन था, ऐसा कुछ भी नहीं था हेतु में। नहीं मैडम, निदानार्थ कारण क्या थे ऐसे में हाँ, मैं पूछिए वही आपको बोल रही कोई। हूँ, यूटेराइन फाइब्रॉइड के ही पूछ रहे हैं ना जो आप कारण है। यस यस मैम। हाँ हाँ, या मैं वही पूछ रही हूँ, कोई सब में सेम कारण, उसका कोई कारण नोन तो है नहीं कि वो क्यों होता है ना। इसका जेनेटिक रीजन भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कोई स्मोकिंग भी ऐसा किसी में नहीं था। मुझे ऐसा कोई उनका रीजन, क्योंकि आजकल जो फाइब्रॉइड है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपको लगभग 10 में से 8 पेशेंट में आपको फाइब्रॉइड मिल जाता है, पर उसका ऐसा कोई रीजन नहीं मिलता है कि आप ये कह सके कि हाँ ये इस मतलब कंफर्म नहीं है कि क्या रीजन है उसमें। ये हो सकता है कि जो आजकल जो सारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, जो ये पेस्टिसाइड और ये सब यूज हो रहे हैं, इनकी वजह से इसका प्रिवलेंस बहुत बढ़ गया है। पर मुझे मतलब जो पेशेंट लिए उनमें ऐसा कोई सेम हेतु नहीं था कि हम ये कह सके कि नहीं इसी कारण से ये हमें मिला है। और जो तेल आपने इस्तेमाल किया है हाँ उसमें जी। लांगली और दूसरे कौन से दो दो ड्रग्स हिंसरा, आपने लिए? हिंसरा और ग्रंथिपर्णी, जो कफ अर्बुदर लेप दिया है सुश्रुत में, मैंने सेम ओके। वही इंग्रेडिएंट लिए थे, बस उनका ऑयल बनाया था तेल तेल में ये लांगली शुद्ध तो करके। सुना है मैडम, दो अदर जो ड्रग्स बोल रहे हैं वो बहुत कॉमन तो नहीं लग रहे मेरे को कहीं। हाँ, उसके कॉमन कोई नहीं पर्याय, है। कौन से पर्याय है उसके ऐसे में हिंस्रा तो आपने सुना ही है ना, हिंस्रा, ओके कैपेरिस स्पाइनोसा ओके ओके। हाँ। और ग्रंथिपर्णी। ओ ग्रंथि, ठीक है। ओके। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम, नमस्कार मैम। हाँ जी, बताइए। मैम जो अनमैरिड पेशेंट है उनमें क्या हाँ जी, कुछ मैनेजमेंट बन सकता है इसका? अनमेरिड पेशेंट में हम उत्तर वस्ती तो नहीं दे सकते है ना, तो हम जैसे जी मैम। जो हमने चिकित्सा है, जैसे अगर उसको जो सिम्टम के हिसाब से दे सकते हैं, जैसे उसको अगर हैवी ब्लीडिंग है तो हम कनकासव दे सकते हैं, बोल परपटी, पुष्यानुक चूर्ण, ये सब हम उसको दे सकते हैं जिससे उसकी ब्लीडिंग रिड्यूस हो जाए। पेन और इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए शिग्रू और ये सब चीजें दे सकते हैं, शिग्रू, रासना, वात शामक दे सकते हैं, है ना। और जी अगर उसको जो ग्रंथि चिकित्सा और ये सब जो आवृत वात की जो चिकित्सा दी है वो हम कर सकते हैं, ओरल ट्रीटमेंट दे सकते हैं मेनली। और वैसे हमने एक पेशेंट में ट्राई किया है कि जो हम मात्रावस्थी, हम पूरा तेल तो ये नहीं दे सकते क्योंकि ये बहुत उष्ण वीर्य था तो इरिटेट करेगा एनस में। तो हमने कफ अर्बुदर 20 ml एंड 40 ml जो नॉर्मल बला तेल या किसी में ऐड करके हमने 60 ml मात्रावस्थी देने का ट्राई किया है अनमेरिड में। अभी उसका रिजल्ट तो हमें नहीं पता है, जब वो आएगा तब मैं आपको बता सकती हूँ कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं मात्रावस्थी से। जी मैम। मैम आपने जो फर्स्ट केस डिस्कस किया था यस। उसमें मैम एंडोमेट्रियोमा जैसा भी यूएसजी में शो कर रहा था, तो हाँ, क्या उसमें भी कुछ एंडोमेट्रियम कर इफेक्ट? रहा था। उसपे मैं मुझे मतलब काफ़ी पेशेंट में ये था साथ में, लेकिन उसपे कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखा इसका एंडोमेट्रियोमा पे। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम।
थैंक यू मैम। कोई पार्टिसिपेंट अभी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आपका हैंड रेज मुझे दिख नहीं रहा। और कोई बहुत सारे विद्वजन ने आज ज्वाइन किया है। डॉक्टर सुरेश जी, डॉक्टर सोनू, डॉक्टर चंद्रकला, डॉक्टर अनुराधा जी, डॉक्टर प्रदीप मैडनिक जी और डॉक्टर वर्षा, आपने यहाँ से ही MD और PhD की। डॉक्टर किमाया, बहुत सारों ने ज्वाइन किया है। बहुत हाँ मैम। धन्यवाद सभी का। ये व्याख्यानमाला 9 साल से अगर अनवरत चल रही है तो आप सभी के सहयोग से ही चल रही है। हाँ जी डॉक्टर उज्ज्वला, आपने हैंड रेज किया है बेटा, यू कैन आस्क। नमस्ते मैम, बहुत अच्छा था प्रेजेंटेशन। थैंक यू। तो मैडम मुझे जैसे कि हमारे पास एडिनोमायोसिस के भी पेशेंट आते हैं ना, हाँ तो जी। उसमें भी सेम पैटर्न होता है कि उनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, पेन हाँ। बहुत रहता है। तो हाँ उसमें भी जैसे कि मार्गगमन हम विचार करते हैं कि एंडोमेट्रियम का दूसरी जगह पे हो जाता है, मतलब मार्गगमन विचार करके और रक्त दृष्टि। तो मेरी एक पेशेंट थी जिसमें मैंने उसके हेतु भी पूरे पित्तवर्धक ही थे, तो मैंने वो सब कुछ किया। थोड़े दिन में उसका ब्लीडिंग वो सब कुछ कम हो गया, लेकिन थोड़े और 5-6 महीने के बाद जैसे मैंने वासागुड़ुचादी दिया था और मांसपाचक, रक्तपाचक ऐसे वो कम हो गया था। फिर बाद में फिर से वो स्टार्ट हो गया और सिस्ट भी स्टार्ट हो गई, मतलब बहुत ही इन्फ्लेमेशन हो गया था पेशेंट के उधर में। तो उसमें हम क्या विचार करें मैम? और ब्लीडिंग एक्चुअली तो रुक नहीं रहा था, कुशाणु ये सब कुछ रेफर भी शुरुआत एक्चुअली हो रहा उसमें हाँ एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रोसिस भी मैंने ये ऑयल ट्राई किया, पर इसका कोई इफेक्ट नहीं था उस पर बहुत ज़्यादा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो होल पंचकर्म है उसमें फिर विरेचन देके, क्योंकि वो पित्त सामक होता है, विरेचन वमन, उसके बाद हम अगर मात्रावस्ती दें सहचर तेल की, तो हमने देखा है कि वो काफ़ी इफेक्टिव है पूरा। लेकिन उसमें पूरी प्रोसीजर रुक्षण, उसके बाद लंघन, मतलब सारा प्रोसीजर, स्नेहन, दीपन, पाचन सारा करके तब हम उसमें जो पूरा शोधन प्रोसीजर है वो करके फिर हम सहचर तेल की मात्रा वस्ती दें और निरूह वस्ती दें, तो उससे काफ़ी फायदा हुआ है पेशेंट्स को। धन्यवाद मैम। ओके, थैंक यू। और डॉक्टर मनीषा जी, कितने लोग हैं और किसी का नाम छूट जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। मैंने साथ में एक बार डॉक्टर सुमन जायसवाल जी, है ना, सभी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं। साथ में एक्टिव फॉर्म में आप अपने प्रश्न भी रखते हैं और इनमें जो प्रश्नोत्तरी सेशन है वो बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव बन जाता है। तो उन सभी चीज़ों के लिए मैडम जी नमस्कार मैडम जी। नमस्कार श्रीनिवास जी, बताइए। मैं थोड़ा बहुत ही लेट ज्वाइन कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। अभी थोड़ा सा एक डाउट है मैडम से कि जैसे अभी प्रेजेंटेशन तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन जैसे इस कंडीशन में ये वरुणादि कषाय, कांचनार, गुगुल वगैरह ये यूज करते हैं बहुत सारे मेडिसिन, बहुत प्रैक्टिशनर। तो वरुणादि कषाय का आपका क्या एक्सपीरियंस है, कुछ आप उसके बारे में बोल पाएंगे? हाँ सर, वो वरुणादि कषाय का मतलब अच्छा रिजल्ट है, ऐसा नहीं है कि, पर वो फाइब्रॉइड साइज डिक्रीज नहीं कर सकता है, पर वो पेन में और जो साइकिल है उसको रेगुलेट करता है, ब्लीडिंग कम करता है, पेन भी कम करता है। हमने भी पहले दिया है ये काफी पेशेंट को, अभी भी करते हैं यूज साथ में, तो ये करता है वरुणादि सपोर्टिव कषाय। मेडिसिन एज ए हाँ सपोर्टिव। सर, सपोर्टिव मेडिसिन का यूज, पर वो फाइब्रॉइड साइज डिक्रीज नहीं करता है। ओके। कांचनार गुगुल अगर हम दे देते हैं तो वो ब्लीडिंग बढ़ा देता है, जो ब्लीडिंग होती है उसमें ब्लीडिंग साथ में बढ़ जाती है उसके, अगर ब्लीडिंग किसी को ज्यादा है तब। ओके, हाँ, थैंक थैंक यू। यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्ते। मैम आपने अभी जैसे हेवी ब्लीडिंग्स में कनकाशों का भी प्रयोग बताया। हाँ तो सर। कनकासों का प्रयोग जनरली हम इस एरिया में प्रैक्टिस में ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिए नहीं किया आज तक हमने। तो किस एक्सटेंट तक ये उपयोगी है, क्या सर ये काफी है? इफेक्टिव है, पत्रांगासव, लोथरासव, कनकासव तीनों काफी इफेक्टिव है ब्लीडिंग में। अच्छा, पतंगासों को तो खैर ये- किया मैडम, लोथरासों भी किया।
लेकिन कनकासो को हम आज कनका तक ब्लीडिंग डिसऑर्डर में यूज नहीं किया, तो हम सर कॉन्फिडेंट एक बार करके होना चाहते हैं देखिए, इसमें। हम एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं, मैं यूज करती हूँ, तो उसका भी जी इफेक्ट काफी अच्छा है कनकासो का। अच्छा, तो मैम हम अगर हम सिंगल ड्रग यूज करना चाहें तो बेस्ट लोद्रासो होगा कि कनकासो होगा? सर ऐसा नहीं है, लोध्रासव से अच्छा मुझे पत्रांगासव और कनकासव लगते हैं। आप मिक्स भी कर ओके सकते हैं कि मतलब हाफ हाफ कर सकते हैं, 10 ml ये 10 ml वो, अगर आपको ये जी लगता मैम, है जी तो। मैम। मैम पेशेंट टू पेशेंट एक तो वेरी करता है। उत्तरवस्ती का डोजेज क्या लेंगे अपन उसमें? 3 आपने to 5 जैसा ml, उससे ज्यादा जाता ही नहीं है सर। अच्छा, और जैसे 7 डेज का शेड्यूल आपने इसमें बोला है, हाँ जी, तो हाँ। हाँ, तो इरिटेशन वगैरह कुछ होगा नहीं उसको, पेशेंट को इसमें क्षार नहीं वगैरह सर, होगा? ऐसा कोई इरिटेशन नहीं होता है। एक्चुअली हम स्नेहन उसके बाद स्वेदन कराते हैं उत्तरवस्ती देने के बाद, तो पेन जी भी नहीं होता है। मोस्टली एब्डोमिनल पेन थोड़ा बहुत होता है पेशेंट में, तो स्वेदन करने के बाद लोअर एब्डोमिनल, तो उससे पेन नहीं होता है। हॉट वाटर बैग या कुछ दे सकते हैं तो पेन भी उत्तरवस्ती के सबसाइड बाद? होता है। हाँ सर, और उससे पहले स्नेहन करते हैं, पंचगुण तेल अच्छा, से या किसी भी बला तेल, 10 मूल तेल, किसी से भी करते जी जी मैम, ओके, थैंक यू मैम। हैं। ओके, थैंक यू सर। सही कहा आपने कि जब उत्तरवस्ती से पूर्व भी सर्वांग सेन सेदन करते हैं तो सच में बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। एक डॉक्टर आद्या आद्या यस, उन्होंने एक चैट बॉक्स में डॉक्टर साहब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओके मैम, मैं which yoke combination would be better in fibroid size 3.6 into 3.5 as with the dysmenorrhea and irregular cycle at the age of 44? आपको ओरल योग पूछना है या मतलब ये है? ओरल में आप दे सकते हैं, अगर ब्लीडिंग कम है तो कांचनार गुगुल और ये वरुणादि कषाय और जो बोला कनकासव, पुष्यानुक चूर्ण, बोल परपटी। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है तो पुष्यानुक चूर्ण, बोल परपटी ये दे सकते हैं। पर ये सारे सिर्फ सपोर्टिव हैं, ये रिड्यूस नहीं करते हैं। कांचनार गुगुल से असमवाट मतलब कुछ हद तक कम होता है फाइब्रॉइड साइज। और अगर 44 ईयर की है, कोई सिम्टम नहीं है, तो हम उसको कुछ भी नहीं देंगे तो भी चलेगा। और ये उत्तरवस्ती जो मैंने आपको बताई वो काफ़ी उससे फाइब्रॉइड साइज रिड्यूस होता है, काफ़ी 50% से ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है उससे। और अगर मेनोपॉज, वो मेनोपॉज की साइड है, अगर मेनोपॉज हो जाएगा तो वैसे ही साइज कम कम होने लगेगा, अगर उसको कोई सिम्टम नहीं है तो। बिल्कुल, बहुत बहुत यस, धन्यवाद। मैं डॉक्टर थैंक साहब यू। की बातों को इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि बहुत बार जब मैं भी यूजी में पढ़ रही थी ना, तो उन्हीं शब्दों को उस इंटेंसिटी से ले नहीं पाती थी, ग्रहण नहीं कर पाती थी, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी पाचन शक्ति होती है ना, उतना ही खाना पचता है ना। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कई बार पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लगता होगा कि मैडम ने बोल ही दिया, डॉक्टर शिखा जी ने, फिर मैडम उसको रिपीट कर रही है। मगर इसमें नहीं बहुत गहरी बात छिपी हुई रहती है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बोला ना, जो शिखा जी ने, कि अगर ब्लीडिंग ज्यादा है तो ये करिए और अगर ब्लीडिंग कम है तो ये करिए। ये बहुत बड़ा आयुर्वेदिक अप्रोच है, पुरुषम पुरुषम वृक्ष वाला। बहुत बार मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि सिर्फ एमआरआई रिपोर्ट या सीटी स्कैन रिपोर्ट या यूएसजी रिपोर्ट पे डिपेंड प्लीज मत करिए, है ना। क्योंकि मेरे बहुत सारे पुराने पेशेंट्स, मैं 20 साल से टीचर हूँ, तो वो है ना, मैडम बल्क यूट्रस है क्या देंगे, मैडम इतना फाइब्रोइड है क्या देंगे, है ना। मैंने कहा बेटा इतने बड़े प्राणाभिसर वैद्य तो है नहीं कि भाई बल्क यूट्रस है इतना फाइब्रोइड है तो क्या देंगे, है ना। मैंने कहा आयुर्वेदिक अप्रोच से इसका हमें जितना भी आता है, मैं ये नहीं कहती हूँ, मेरे में भी बहुत सारी कमियां होगी और है भी कुछ, तो मैं खुद ही जानती हूँ कि समय के साथ पता चल जाती है कि ये मेरे में कमी है। मगर जितना भी हमें समझ में आए, अगर इस तरीके से जो मैडम ने कहा, अगर हम मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से हिस्ट्री लेने पे अगर हम ध्यान देते हैं तो हमें बहुत अच्छी ट्रीटमेंट अपने आप स्वयं के दिल से निकलती है। इसमें ये देना चाहिए। और मैंने भी अपने उसमें देखा कि जो फाइब्रॉइड ब्लीडिंग कॉज नहीं करता है वो रिग्रेस नहीं हुआ, मगर जो ब्लीडिंग कॉज करता है वो कहीं ना कहीं रिग्रेस होता है ना। तो फिर मैंने कई सालों तक उसका सॉल्यूशन ढूंढा कि ऐसा क्या आयुर्वेद में रेफरेंस मिलेगा क्या कि हम इस बात को साबित कर सके या इसको थ्योरी फॉर्म में दे सके। तो कुछ साल बाद मुझे उसमें मिला कि जहाँ धातु प्रदोषज विकार बताए हैं
वहाँ चरक जी मांस मेद का विकार अर्बुद बताते हैं, मगर सुश्रुत जी रक्त प्रदोषज विकार में भी अर्बुद बताते हैं। और रक्त प्रदोषज विकार में अतिरिक्त भी है ना। तो जैसे ही अगर उत्तरोत्तर धातु मांस मेद का इन्वॉल्वमेंट है तो शस्त्र क्षाराग्नि कर्म हमारी साइंस ही बताती है। हम क्यों कोशिश करें उसको, है ना, क्योंकि हमारे आचार्यों ने खुद बता दिया कि इसका शस्त्र क्षार अग्नि कर्म ये उसकी चिकित्सा है। और इधर जहाँ मांस प्रदोषज से पहले पहले का है रक्त प्रदोषज है। हम सभी जानते हैं कि रक्त वह स्रोतस का मूल क्या है, यकृत और प्लीहा। तो क्या मूल पे आघात करने पे या मूल को ट्रीट करने से कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल होता है, 100% होता है। अपने NIA के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं अगर अर्बुद में अस्ट्रिक्टर है या हैवी ब्लीडिंग है या ज़्यादा दिन तक है ना, तो हम रोहड़ा की छाल लिखते हैं, 20 ग्राम सुबह 20 ग्राम शाम को। बहुत अच्छी है, जो यकृत तज्ञ प्लीहज्ञ दोनों है। कोई ना कोई निघंटू ने उसको दोनों बताई है, जयदेव और भाव प्रकाश और राज निघंटू, और है ना, मुझे पर्टिकुलर रेफरेंस नहीं याद है, थोड़ा देखना पड़ेगा। मगर सभी ने कहीं ना कहीं यकृत के लिए या प्लीहा के लिए, दोनों के लिए बताई है, इसमें सिंगल के लिए बताई है। तो हमने एक ही ड्रग पसंद किया क्योंकि हमें थ्योरी को चेकआउट करना था कि आचार्यों ने लिखा है क्या आज ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल होता है, और आप करके देख लीजिए, है ना, कि जहाँ भी आपको अस्त्रिग्ध मिलता है उसमें अगर हम यकृत प्लीहा के लिए अच्छी औषधियाँ लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा जो डॉक्टर साहब ने भी इंगित किया कि धातु साम्य करना चाहिए, है ना। और एक डॉक्टर साहब ने पूछा भी था, है ना, तो ये स्टडी बिल्कुल अलग प्रकार का हो जाएगा निदान के ऊपर, जो आप पूछना चाह रहे थे कि कौन से निदान मिले। तो निदान एक पेशेंट का लेने के लिए 1.5 घंटा चाहिए। तो रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टडी हो जाएगा। और मुझे जो मिला है, जो मेरे पास ऐसी सीरीज तो नहीं है, डॉक्टर सीरीज है, अगर निदान की बात करें तो उसमें लगातार दही खाना 12 महीने और 30 साल 35 साल 25 साल 15 साल रात को भी दही खाना और विरुद्ध आहार, ये कहीं ना कहीं मिलता ही है। और अनियमित जीवन शैली, है ना, और जिसकी नियमित जीवन शैली है तो फिर वो टेंशन ज़्यादा लेते हैं, विषाद रोग वर्धना नाम, फिर उधर चले जाते हैं वो लोग, है? तो आप अपने पेशेंट के साथ समय बिताइए, निदान पकड़िए, और वही निदान दूसरे में कई बार बिल्कुल नहीं मिलते। ये डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बताया कि हम, यानी आप सोचिए कि चरक सुश्रुत ने निदान लिखते समय कितनी वास्ट स्टडी की होगी, है ना। उसके बाद उन्होंने लिखा कि भाई ये 25 निदान है इस रोग के। तो इतने अगर हम करते हैं मिलके बहुत सारे चिकित्सक मिलके एक ही फॉर्मेट से रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कर पाएंगे हम। डॉक्टर सुधा बन्ना, आपने हैंड रेस किया है, डॉक्टर साहब आप पूछना चाहेंगे कुछ, है ना? जी नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स में आजकल गर्ल्स में ब्रेस्ट टेंडरनेस बहुत ज्यादा मिलती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? ब्रेस्ट टेंडरनेस में हाँ मेनली जी। हम जो लेप बताया है वो हम दे सकते हैं, पर गर्ल्स लगाना पसंद नहीं करते हैं mainly, यही है ना। तो हम शीघ्र गुकुल जो इन्फ्लेमेशन कम कर सकते हैं उनका इससे, या रासना वरुण, ये सब चीज़ें वात शामक होती हैं तो पेन कम हो जाता है इनसे। और थोड़ा एक्सरसाइज जो होती है, अगर हम डेली रूटीन चेंज करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। तो इसमें मैम वरुणादि कषाय हम दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। और वात नाशक द्रव्य जैसे रासना वात शामक, हाँ गुरु वगैरह ये साथ में दे सकते हैं। हाँ जी। और जिन गर्ल्स में मैम स्कैंटी पीरियड्स हैं, मतलब उनको पीरियड स्टार्ट हुए 2-3 साल हो गए हैं, बट उनको स्कैंटी पीरियड्स हैं, 1 दिन आते हैं 2 दिन आते हैं, बहुत हैवी ब्लीडिंग नहीं है, बिल्कुल कम है, तो उसमें हम क्या करें? एक्चुअली अभी स्कैंटी पीरियड क्यों है, ये तो जैसे थायराइड डिसऑर्डर में भी स्कैंटी हो जाते हैं। मैम अगर पीसीओडी है, नॉर्मल है, हाँ क्या चीज़, टेस्ट नॉर्मल है मैम उनकी। LH FSH और सारी चीज़ नॉर्मल है, प्रोलैक्टिन LH FSH टेस्टोस्टेरोन हाँ जी, सब चीज़ें नॉर्मल हैं। हाँ जी। तो हम रजा प्रवर्तनी वटी और ये सब जो पित्तवर्धक हैं वो दे सकते हैं अगर स्कैंटी ब्लीडिंग है तो।
पित्तवर्धक द्रव्य हैं उनको दे सकते हैं। उनकी जो हो सकता है वो जो उनकी डाइट हो, आजकल फास्ट फूड बच्चे खाते हैं ज़्यादा, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो उनको फास्ट फूड के लिए कम करना है एक तो मेनली, और उनको डेली एक्सरसाइज, जो आजकल की जो लाइफ स्टाइल है अगर वो उसको भी चेंज कर लेंगे तो भी बहुत इफेक्ट पड़ता है उसका। इसमें लाइफस्टाइल चेंज करना है ना, तो ये तो सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मेरे पास आजकल 30-35 साल 35 साल में भी 1 साल जिया है, प्रेशर इसमें बिटरनेस, उसके पेशेंट आते हैं और रक्त धातु की चिकित्सा करवाई जाए उसमें, और हाँ ये लाइफस्टाइल ठीक करवाया जाए, यानी लंगन दीपन पाचन। इवन एक स्कूल गोइंग नहीं, स्कूल नहीं, कॉलेज गोइंग पेशेंट में हमने राजस्थान में है ना 2 ही बार खाते हैं। मैं जयपुर में हूँ है ना, तो जयपुर अच्छा में ट्रेडिशनल लोग सुबह 10 बजे खाते हैं, शाम को 5 बजे अच्छा खाते हैं। तो मैंने उस लड़की को यही कहा, मैंने कहा बेटा मुंह जूठा नहीं करना, जैसे व्रत होता है ना तो हम कैसा ध्यान रखते हैं कि मुंह में कुछ ना जाए उस दिन, एकादशी है या व्रत है, तो उसने वैसा ही किया और बिल्कुल कंप्लीटली गायब है ना। डिसमेनोरिया में भी इसी बात से बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है, हाँ यानी आप पेशेंट की लाइफस्टाइल ठीक कराने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी मेहनत की जा सकती है, लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है डॉक्टर मनीषा मिश्रा जी ने पूछा है कि आप अगरबत्ती में जो ऑयल यूज करते हैं उसके बनाने की प्रोसेस शॉर्ट में थोड़ा रिपीट प्लीज कर दीजिए। हाँ, तो हमने जैसे जो प्रोसेस तेल पाक की है वही प्रोसेस की है। इसमें ग्रंथिपर्णी, लांगली और हिंसरा का हमने क्वाथ बनाया, ठीक है, और उसको फिर हमने तिल तेल हमने इसमें लिया और इसमें गौमूत्र डाला है। जो क्वाथ आधा और आधा गौमूत्र, 10 ml, जैसे 10 ml क्वाथ है तो 10 ml गौमूत्र हमने और उसमें तेल, और इसमें एक अपामार्क क्षार भी डाला है। उसको तेल पाक विधि से बस किया है और ऐसा कुछ भी अलग से नहीं किया है। धन्यवाद रचना, पर ये भी आपका एक क्रिएटिव, खुद का सच में तो कहूँगी आइडिया था और आपने उसका यूज किया है तेल बना के अगरबत्ती में, है ना। तो मैं चाहूंगी कि अपने सारे पार्टिसिपेंट या जैसे स्टूडेंट्स भी ऐसी ही क्रिएटिविटी बताए, जिससे चरक सुश्रुत को भी हमारे पे नाज हो कि नहीं नहीं मेरे फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं, है ना, और बनी बनाई साइंस को भी और क्रिएटिविटी में दिखाते हैं। डॉक्टर सुमन देशवाल जी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्शन क्या होता है कनकासव का मैम। कनकासव का एक्शन कैसे काम करता है, ये क्या? जी ऐसा ही मुझे लगता है कुछ पूछना चाहते हैं। डॉक्टर सुमन देशवाल जी आप हैं वहाँ, यहाँ है तो एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, या मुझे क्वेश्चन से तो ऐसा ही लग रहा है डॉक्टर। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुमन जी है, हाँ जी एक बार रिपीट कर दीजिए। मैम वही पूछना था कि एक्शन कैसे करता है कनकासव। ओके, कनकासव का वर्क पूछ रहे हैं ना? हाँ जी, यस मैम, यस। ओके, वैसे तो ये जो मेन इसका वो है वो तो कफ के लिए दिया हुआ है ना, जो आयुर्वेद में दिया हुआ है, कफ को अस्थमा में ये सब में भी देते हैं। पर जो ये हम जब ब्लीडिंग में देते हैं तो ये ब्लीडिंग काफी कम कर देता है मेनोरेजिया में। ओके मैम, थैंक यानी वो पुरुष माने सॉरी रोगी की प्रकृति के अनुसार वो रोगी की बहुत अच्छा प्रकृति काम के करता अनुसार है। जी 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 जी। यस सही बात है, मैं पहले भी एक लेक्चर में बता चुकी हूँ कि सामान्य रूप से मैं पीसीओडी में दातवाग्नि मान के चिकित्सा करती हूँ, है ना। यस मैम। मगर मेरे पास एमडी करने के 2-3 साल बाद ही एक पेशेंट आई थी, पीसीओडी के साथ डोमिनेंट पित्तज प्रकृति थी, है ना, पीसीओडी था उसको और वॉल्स इश्यू भी था, मगर उसके ही साथ में प्रकृति बिल्कुल पित्त डोमिनेंट थी, बहुत गौरवर्ण था, बहुत बुद्धिमती महिला थी, है ना, और गर्मी के सीजन में ज़्यादा परेशान थी, ऐसे जो जो भी मुझे लक्षण लगे पित्त प्रदान लगे, और मैंने इसको सिर्फ आमलकी चूर्ण दिया है और वो 2 महीने में कंसीव है ना। तो इसलिए प्लीज हमको प्रकृति पूरी और दोष कोशिश, देख के। यस यस, है ना, कि भाई आपकी पेशेंट की प्रकृति क्या है ना, कौन सा मौसम अच्छा लगता है, कितनी हाई हाई चिंता क्या करते हैं, है ना। तो अगर ऐसा भी हम ध्यान रखें तो औषध
हो जाएगी, और वो भी पीसीओडी की, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें पुरुषम पुरुषम वृक्ष वाला शब्द को आबाद करने की ज़रूरत है, लोगों में फैलाने की ज़रूरत है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आपने इतने सारे क्वेश्चन का आंसर भी किया। डॉक्टर सुमन जी ने बहुत आपका धन्यवाद किया है वंडरफुल सेशन के लिए। डॉक्टर आव्या AVIA, है ना, ऐसा ही नाम पड़ा है, कहीं गलत नाम पड़े तो माफ़ कर दीजिएगा। और डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर, है ना, बहुत सारे लोगों ने इस सेशन के लिए आपका धन्यवाद किया है। डॉक्टर ममता जी ने एक पूछा है, यूज ऑफ हाँ जी। प्रॉपर्टी मे बी वन ऑफ द कोज ऑफ राइज इन फाइब्रॉइड, इस बारे में कुछ आपके विचार बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? कॉपर का यूज हो सकता है म्यूटेशन पर, मुझे लगता है ये उससे ज़्यादा एंडोमेट्रियोसिस का कॉज ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इससे इरिटेशन होता होगा। मतलब मैं कोई श्योर नहीं हूँ कि मैंने इस पे कोई वर्क नहीं किया है, लेकिन मेरे हिसाब से एंडोमेट्रियम पे कोई तो जो होता है, तो इससे एंडोमेट्रियोसिस के चांसेस ज़्यादा होंगे बिसाइड, या एडिनोमायोसिस के चांसेस होंगे बिसाइड फाइब्रॉइड। जो अगर आपने मेरे विचार पूछे तो इसलिए मुझे, क्योंकि मेरा इस पे कोई वर्क नहीं है, कोई मैंने ऐसा कुछ रिसर्च नहीं किया है कि मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकती हूँ। सही कह रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता भी है कई बार, है ना, कि हम आयुर्वेद के, शायद मैंने नेट पे देखा था 12 लाख लोग हैं हम आयुर्वेद के, है ना। तो मुझे लगता है 12 के 12 लाख लोगों को 365 दिन का एक वाक्य हमें, है ना, क्यूमुलेटिव फॉर्म में देखना चाहिए कि आज आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हुए, और या जो प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं, घर में किसी को मिलते हैं करते हैं, है ना, हम सभी हाँ मैम, एक बात को एक दिन बोले, है ना, कि बिना भूख खाना नहीं खाना है ना, सही। कि जीर्णे अश्नयात, खाना जीर्ण हो जाए फिर खाना है ना, मात्रावत गुंजी, ऐसे कोई ऐसे एक अगर हम करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को, भारत के लोगों को हम रोगी होने से बचा लेंगे, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अग्नि की रक्षा, कहीं ना कहीं अगर प्रकृति के अनुसार उसका एवोल्यूशन, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हम लोगों को स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, दीपा मिश्रा मैडम भी आ गई है, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ मैडम। दीपा। और शिखा जी का बहुत अच्छा सेशन रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इंफॉर्मेटिव, और बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर भी चल रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप भी हमें आशीर्वचन दीजिए, डॉक्टर दीपा मैडम। हेलो। हाँ मैडम, मैं बाहर हूँ, लेकिन एज यूजुअल आपका सेशंस, आप जो सिलेक्शन करती हैं केसेस का, और आपका जो एक अप्रोच है ना, वो तो सबको, हम लोगों को बहुत पसंद है। दैट्स वाई हम लोग चाहते हैं कि आप यहाँ पर भी आकर हम लोगों को, दैट्स वाई हम लोग ने रिसोर्स पर्सन की तरह आपको इनवाइट भी किया है। मैम, आपके अप्रोच बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आयुर्वेदिक, और अ, इतनी अच्छी है कि वो हम लोग सब अप्रिशिएट करते हैं। और डॉक्टर शिखा का तो सच मुझे मालूम भी है कि उनका मैं पूरा तो नहीं ज्वाइन कर पाई, लेकिन मैम का वर्क बहुत अच्छा है। जो इन्होंने अभी फाइब्रॉइड पे वर्क कर रही हैं, वो यहाँ पर एज अ प्रोजेक्ट भी कर रही हैं। उनमें उनके ऑयल जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही यूजफुल भी है। तो और उन्होंने नया वर्क भी किया है, इसकी इंफॉर्मेशन भी उन्होंने इसमें दी होगी डेफिनेटली। थैंक यू डॉक्टर शिखा, एंड थैंक यू सो थैंक यू मच मैम, हेतल। आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया इसके लिए। थैंक यू हेतल मैम, थैंक यू। डॉक्टर अंजना जी ने हैंड रेज किया है, डॉक्टर अंजना जी। हेलो डॉक्टर अंजना जी। हाँ जी। नमस्ते मैम। हाँ जी, हाँ जी, जी बेटा। बहुत ही अच्छा सेशन रहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं ये जो आपने तेल बनाया है ना, उसको एक बार आप रिपीट कर दीजिए, वो थोड़ा मैं लिख नहीं पाई थी। अच्छा, मैंने ग्रंथिपर्णी, लांगली और हिंसरा, ये 3 ड्रग हैं, इनका क्वाथ बनाया, और उसमें गौमूत्र सेम अमाउंट में, जितना क्वाथ था उतना गौमूत्र, और ऑयल डाला है 1/4, और इसमें अपामार्क क्षार डाला है। ये चीज़ इसमें मैंने डाली हुई है, और उसको तैलपाक विधि जो बताई हुई है, उसी तैलपाक विधि से तैलपाक किया है, और तिल तेल डाला है।
ग्रंथि, पर्णी, लांगली और तीसरा क्या बताया? हिंस्रा कैपेरिस स्पाइनोसा हिंस्रा। अच्छा, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। मैंने अपना फ़ोन नंबर चैट बॉक्स में डाला है। आप में से कोई बिल्कुल नए व्यक्ति है और चाहते हैं कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम को 6 बजे इस ज्ञान यज्ञ में प्रश्न रूपी आहुति या स्पीकर को सुनने के लिए आप आना चाहते हैं तो आप इस पे एक मैसेज डाल दीजिए अपना नाम और कि ऐड मी इन द ग्रुप, तो मैं आपको ऐड करती हूँ। 2015 से चलती हुई इस अनवरत व्याख्यानमाला का एकमात्र उद्देश्य है कि हम भारत में बहुत अच्छे संख्या में श्रेष्ठ चिकित्सक निर्माण करें जो कहीं ना कहीं नॉट अ जॉब सीकर बट जॉब प्रोवाइडर, नौकरी मांगने वाले बच्चे ना हो, नौकरी देने वाले हो। और आपके कारण किसी 3, 4, 20, 50 लोगों के घर में चूल्हा जलना चाहिए और आप लोगों के लिए जॉब प्रोवाइडर बने। ऐसा एक उद्देश्य लेके हम यहाँ से 2015 से चले हैं और बहुत सारे डॉक्टर शिखा जी जैसे स्पीकर्स का हमें साथ मिला और निःशुल्क रूप से चल रही है। उसके बावजूद भी यानी भारत में अच्छे लोगों की कमी ही नहीं है बिल्कुल, है ना, कि एक बात दिल का एक कोना अच्छा है वो हमें समझ में आ जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का हमें साथ मिल जाता है। डॉक्टर उषा जी आप मेरा नंबर नोट करिए क्योंकि मैं बहुत सारे काम इकट्ठे करती हूँ तो मैं इतना नहीं कर पाती हूँ, है ना। तो अच्छा रहेगा कि आप अपना मोबाइल नंबर सॉरी मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए और जिससे मैं, है ना, आप मैसेज करेंगे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है तो उस पे जैसे ही डालेंगे मैं तुरंत ही आपको ऐड करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी अपनी जगह पे श्रेष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा करते हुए भी अपने हिस्सेदारी का प्रामाणिकता आयुर्वेद के प्रति दिखा सकते हैं तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भारत के लोगों की फर्स्ट चॉइस बने। किसी को कुछ हो ही नहीं, किसी को कुछ होता है तो उसको सबसे पहले दिमाग में आयुर्वेद आना चाहिए कि आयुर्वेदज्ञ को चल जाके पूछूं कि ये क्या है और ये किस वजह से हुआ। तो अगर ऐसा हम एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं तो रोगों की संख्या हम काफी कम कर पाएंगे। डॉक्टर शिखा जी आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए और आपने बहुत अच्छा अपना ज्ञान यज्ञ में आहुति के रूप में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और आगे भी आप बहुत करें। हाँ आपके जी लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपने मुझे अवसर दिया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। थैंक यू मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। अच्छा उज्ज्वला जी फिर से आपने हैंड रेस किया है, लास्ट क्वेश्चन बेटा। हाँ जी। जी 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 मैम, मेरा हेतल मैम, मेरा प्रश्न आपसे ही था। जैसे कि आपने बोला कि आमलकी का जो आपने पीसीओडी में यूज किया ना, जी तो मेरे पास भी ऐसी एक पेशेंट है कि जहाँ पे उसका पीसीओडी तो नहीं है पर एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा है पर ब्लीडिंग बहुत कम होता है। जी और पित्तानुबंध मतलब गुददाह, वो मेरे पास उसी के लिए आई थी कि जी उल्टियां होती थी ओके और रेट्रोस्टर्नल मतलब बहुत जलन होती है और फिर हम्म। गुददाह भी है ऐसे। तो वहां पे हम लेखन चिकित्सा भी कैसे करें, क्योंकि लेखन जैसे कांचनार देना है, रज प्रवर्तनी देना है उसको लेखन करके। तो मुझे यही पूछना था कि मैम अमलकी का आपने कैसे विचार किया, जैसे हमें लेखन और अनुलोमक मैंने द्रव्य मैंने आपको चाहिए। बताया ना बेटा कि जो मेरी पेशेंट थी ना वो गौर वर्ण थी, जैसे हिमाचली फीचर्स होते हैं ना, थी राजस्थान की वो, मगर वो हिमाचली फीचर्स थे उसके। और उसको गर्मी की सीजन में बहुत परेशानी होती थी, ठंड में उसको बड़ा अच्छा लगता था, है ना। और वो बहुत बुद्धिमती महिला थी, उसके मार्क्स 80 प्लस आते थे, है ना। तो ये सारे लक्षण आप देखिए सारे पित्त की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो एक मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी, पता है अपने दिल से बात करना शुरू करो, आपके दिल से आवाज आएगी। मेरे दिल से तो आती है ना। और मेरा दिल मुझे बहुत कुछ कहता है कि नहीं ये लिखना चाहिए, है ना। तो और हमेशा आज तक टचवुड चरक की कृपा है कि मेरा एक भी हाइपोथेसिस बेटा गलत नहीं हुआ। अगर मैं सोचती हूँ ना कि ये जाके ये करेगा या ये द्रव्य ऐसे रहेगा तो वैसा ही होता है। जस्ट दिल का कमाल है। और मुझे बनाने में मेरे जामनगर के यूजी पीजी के सभी टीचर्स का बड़ा योगदान है कि जिन्होंने 10 साल में मुझे कभी वेरी गुड नहीं कहा। मुझे कभी वेरी गुड नहीं मिला। कभी हम लाड भी करते थे सर के पास कि सर थोड़ा वेरी गुड कहते अच्छे काम करो, चलो चलो
कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे वेरी गुड मिले। तो हम हमेशा वेरी गुड के लिए तरसते रहे और कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स ने हमारी जिंदगी बना दी वेरी गुड नहीं देके, है ना। तो इसलिए टीचर अगर नहीं भी कुछ देता है ना तो इसको ईश्वर का प्रसाद समझिए कि इसमें जरूर कुछ अच्छा है, तभी ईश्वर कह रहा है गुरु के माध्यम से, गुरु जी के माध्यम से, इसको वेरी गुड मत दीजिए। तो ये लगातार कोशिश करेगा, है ना, करेगी, या जो भी है ना स्टूडेंट। तो मुझे लगता है कि ऐसा अच्छा रहेगा। तो आप पेशेंट को देखिए, है ना, पेशेंट को देखने के बाद उसकी प्रकृति, है ना, उसमें जो भी जितना भी समझ में आता है उसके अनुसार अगर आप निर्णय लेते हैं, है ना। तो मैंने एक बार पहले वाले लेक्चर में भी कहा है कि मैं मेरे पेशेंट को, जहाँ भी क्रॉनिक है ना, बिल्कुल इजी होते हैं वहाँ इतना डिटेल में नहीं जाते, समय भी नहीं रहता है। तो टफ क्रॉनिक केस में मैं ऐसा पूछती हूँ कि पेशेंट को कि बेटा तुम्हारी गलती नहीं है और तुम्हें डांट पड़ गई, कितने दिन तक याद रहता है ना। तो दो आंसर आएंगे, बहुत दिन तक याद रहता है, बहुत दिन तक नहीं रहता है। जिसने भी कह दिया ना कि बहुत दिन तक याद रहता है, बॉस बहुत टफ है, तो मैं उसको कहती हूँ, मैंने कहा बेटा माफी मांग लो और माफी दे दो, बस यही दस्तूर है। क्योंकि मन इतना कुचुड़ कुचुड़ कुछ कुछ करके पूरे शारीरिक दोषों को परेशान कर देता है ना। और इसी तरीके से आपकी गलती थी और आपको डांट पड़ गई, कब तक याद रहेगा। तो बहुत सारे पेशेंट, आप पूछ के देखिए ये क्वेश्चन, है ना, बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि मेरी गलती थी, मैं समझती हूँ, मगर मैंने ऐसी गलती कर कैसे दी। व्यक्ति अपने आप को माफ नहीं करता है ना। तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज के लिए कोशिश करने की जरूरत है कि भाई खुद को भी माफ करना पड़ेगा। जब हम आपको सिखा रहे हैं कि दूसरों को कर दो, है ना, तो उस तरीके से खुद को भी कि ठीक है ना यार, आगे ध्यान रखेंगे, है ना। नो वन इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, है ना, क्या कर सकते हैं। और ठीक है, हो गया भाई, जाने दो, खुद को भी जाने दो, है ना। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। और डॉक्टर प्रदीप जी ने भी ज्वाइन किया है, हमारे वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर, और उन्होंने भी हमें इमरजेंसी स्पीकर के लिए भी अपनी अनुमति दी ही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब यहाँ पधारने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। और अगर आप फ्री है 2 मिनट तो हम आपसे आशीर्वचन लेना चाहेंगे। डॉक्टर प्रदीप जी। हाँ, साइड कीजिए। हाँ जी, उस दिन भी उनका बहुत ही ओपीडी रोक के उन्होंने किया था और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और बाकी सारे भी पार्टिसिपेंट्स को तहे दिल से धन्यवाद। और पुनश्च आज के स्पीकर को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आपने थैंक यू आए मैम। और आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। धन्यवाद। आप सभी मिलकर ही दोहराएंगे। ओम शांति भवन्तु नः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। अगले शुक्रवार को 6 बजे नए अवसर, नई ऊर्जा के साथ हम आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शिखा जी। थैंक यू मैम।